So in the 16th Lok Sabha, I have moved a private member's resolution, and detailed discussion took place on the resolution, and finally the government was forced to constitute a committee to revamp the employees' pension scheme. Comes under PF Act. That is, employees' pension scheme has to be revamped. A committee has been constituted. As rightly the Honourable Minister has stated in the answer that a committee constituted and the committee has submitted the recommendations also. My point, the entire House, the 16th Lok Sabha, entire House has supported the resolution. Across party political barriers, everybody has supported the resolution, and finally a committee has been constituted. And the recommendation has come in the month of December 2018. It is quite unfortunate to note the answer given by the Honourable Minister that regarding E, the clause E, no decision has been taken to restore the commuted value pension. Sir, you may kindly see, if I have advanced an amount of 50,000 rupees from my pension, a cashew worker commuting an amount of 50,000 from her pension, and after realization of 15 years, within 15 years, the entire amount will be realized from the pension. 1,78,000 rupees has already been reimbursed from her pension. What she has advanced is only 50,000. My specific question to the Honourable Minister is that it has been assured, the then Minister in 16 Lok Sabha has assured that it will be reviewed. That is, whether the realization of the full pension, that is, restoration of full pension, after the realization of the commutation amount will be done. Here the answer is no decision has been taken yet on the basis of a fund paucity. But my question is, how can you realize the money of a poor pension after realizing the entire amount which has already been commuted? Whether a specific assurance will be given by the Honourable Minister so that the 65 lakh of pensioners in the country will be benefited. Thank you, sir. माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो इन मजदूरों की चिंता लंबे समय से कर रहे हैं और अच्छे जानकार हैं। और ये भी सत्य है कि आपने जो प्राइवेट मेंबर बिल विगत लोकसभा में रखा था, उसी के आधार पर हाई पावर्ड कमेटी का गठन हुआ था। ये आप जानते हैं कि हम जो भी निर्णय लेंगे वो सीबीटी के फैसले के बाद लेंगे। और आपने जो बातें बताई हैं वो सारी बातें हमारे संज्ञान में है। कैशू वर्कर्स के बारे में जो बातें बताई हैं उसका भी आपने एक एनोमली बताई थी, उसको भी हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। पर अगले महीने हम सीबीटी की बैठक कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि सीबीटी बैठक में सारे मजदूर संगठन, सारे एम्प्लॉयज और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आते हैं। उसमें बैठकर हम इसमें जो भी फैसला लेंगे, मैं इतना कह सकता हूं कि आपकी भावनाएं और मजदूरों की भावनाओं को ध्यान में रखकर हम लोग फैसला लेंगे कैसे हम इसका हित करा जाए। और सीबीटी की बैठक में आपको भी हम संपर्क संज्ञान में लेंगे और निश्चित रूप से जो आप बात कह रहे हैं उसको एक चिंता के साथ हम एक पॉजिटिव मजदूर के संबंध में फैसला लेकर निर्णय लेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, द नेक्स्ट सप्लीमेंट्री इज दैट इज before 2014, minimum eligibility of pension was 10 years of continuous service. After the scheme is amended in 2014, 10 years means 10 into 365. That means 3,650 attendance is required for getting minimum pension. That means a worker has to work for 365 days in a year means it is nowhere even heard of. As far as the poor workers in the country, they have to work for 365 days. In a year means where the law is. So, whether my specific question to the Honourable Minister, my second supplementary part A is, whether this 3,650 days for minimum eligibility of pension will be reviewed, and supplementary part B of my second supplementary is, whether any recommendation has come from the Finance Ministry that the interest on the PF amount has to be reduced, whether any recommendation has been received from the Finance Ministry. These are the two parts of my second supplementary. Thank you very much. सर, जैसा माननीय सदस्य जी कह रहे हैं कि सीजनल इंडस्ट्री के अंदर एक वर्ष का मतलब ये होता है कि वो कितने समय काम किया है। एक वर्ष का मतलब 365 डेज नहीं होता है। अगर 3 months 4 months कैजुअल वर्कर ने काम किया है तो उसके साथ जोड़ा जाएगा और इसमें कोई एनोमली है तो हम उसको बैठकर दूर करने का काम करेंगे। पर मैं इतना कह सकता हूं कि सीबीटी की पिछली बैठक में 18-19 में 8.65 ब्याज दर की संस्तुति वित्त मंत्रालय को की गई है और वित्त मंत्रालय ने इसको समझने के लिए हम लोगों से कुछ जानकारी मांगी है
कोई मना नहीं किया है। और मेरा मानना है कि हमारी बात से वित्त मंत्रालय सहमत होगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और वो आपको बाद में अवगत करा दिया जाएगा। श्री जगदम्बे गोपाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। ये लाखों श्रमिकों के एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ है, जो 1995 का हमारा एक्ट है। और मैं धन्यवाद भी दूंगा कि हमारी सरकार ने पिछली 21 दिसंबर 2018 को जो समिति बनाई थी एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट आ गई और उसकी जो रिपोर्ट है वो अपने आप में 7 बिंदुओं पे दिया है, जो निश्चित तौर से लाखों एम्प्लॉइज के भविष्य के लिए उनके हितों का पोषक होगा। चाहे लिंकिंग द मंथली पेंशन विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो मैं उस रिपोर्ट पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि इसका फैसला सीबीटी करेगी। तो जब सीबीटी में केंद्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, लेबर एम्प्लॉइज के प्रतिनिधि होंगे, तो ये जो ट्रिपार्टाइट कमेटी बनी है, तो क्या इसकी रिपोर्ट आने के बाद कोई बैठक हुई है? अगर बैठक हुई है तो उसकी क्या प्रगति है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि सीबीटी की बैठक एक रेगुलर इंटरवल में होती है और ये भी उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि विभिन्न उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में करीब सुप्रीम कोर्ट में 39 मामले और विभिन्न राज्य सरकारों में 733 मामले लंबित है और ईपीएफओ ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन लगा रखी है और ये मामला अभी भी सब जुडिस है। अगले महीने हम सीबीटी की मीटिंग बुला रहे हैं और उसमें बैठकर फैसला लेंगे और ये एक लंबा प्रोसेस है। मजदूर संगठन और एम्प्लॉयर और राज्य सरकारों के परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लेने के बाद फैसला होता है। और मैं ये माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि जो भी पैसा है वो पैसा मजदूर का है। सरकार का इसमें योगदान केवल 1.16% होता है, जो हमने 15,000 की जो बात की थी उसके संदर्भ में, और उसकी फिगर भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि पिछले 10 वर्षों में फिगर जो पहले 2,500 थी अब 5,000 फिगर हो गई और सारा पैसा मजदूर का है। तो मैं समझता हूँ हम जो भी फैसला लेंगे मजदूर के हित को ध्यान में रखकर और सेवानिवृत्ति के बाद मजदूर को लंबे समय तक उसकी राशि मिले, खत्म पैसा ना हो जाए कि ऐसा ना हो 10 साल के बाद ये योजना ही हमको खत्म करनी पड़ी। तो मैं आपकी भावना से अवगत हूँ और निश्चित रूप से सीबीटी की अगली बैठक में हम फैसला लेंगे और निश्चित मजदूर के हित का फैसला होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सौगत राय जी, संक्षिप्त में। Thank you very much, sir. You're very kind. I also thank Mr. Premchandran for repeatedly raising the questions regarding the EPF-based pensions. Now, I want to ask a straight question to the Honorable Minister. He has suggested a very complicated way of taking decisions on the matter of EPF pension. CBT का मीटिंग होगा, फिर कंसल्टेशन होगा, फिर बजटरी हेल्प आएगा, उसके बाद अभी वर्कर को केवल 1,000 रुपीज मिनिमम पेंशन मिलता है। ये पहले 300 रुपया था, सरकार बढ़ा के 1,000 रुपीज किया, लेकिन ये भी बहुत कम है। मंत्री अवगत होंगे कि ये बहुत कम है। मैं सीधा एक डिक्लेरेशन चाहता हूं मंत्री से, ये पेंशन 1,000 रुपीज से बढ़ा के आप कितना करेंगे और कब करेंगे, इसके बारे में आप कृपया ये हाउस को अवगत कराएंगे। मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूँ। आप वरिष्ठ सांसद हैं, पर मैं एक इस बात की ओर संज्ञान लाना चाहूंगा कि मिनिमम पेंशन 2014 में तत्कालीन हमारी सरकार ने निर्णय लिया था और 1,000 रुपया देने के ऊपर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ रही थी, उसमें 813 करोड़ की। अब 1,000 से सुन ले आप अगर 1,000 से 2,000 करते हैं तो जिम्मेदारी आएगी 4,671 करोड़ और 3,000 करते हैं तो 11,696 करोड़। ये फैसला सरकार करेगी और यहाँ सदन जो बैठा है सब लोग मिलकर करेंगे। ये फैसला जो करेंगे वो हमको मैं आपकी भावनाओं से सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ।